آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ لگتی ہے، جہاں انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے اور جہاں سیکرٹ کو چھپانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، وہیں ایک ملک ایسا بھی ہے جو آج بھی ایک مائسٹری ہے، ایک ایسا بلیک باکس جس کے اندر کیا ہو رہا ہے دنیا کو پوری طرح کبھی نہیں پتا چلتا۔ یہ سوال آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آخر کیسے ایک انسان جو ایک ہی فیملی کے تیسرے ڈکٹیٹر ہیں 25 ملین لوگوں پر ایبسلیوٹ کنٹرول رکھتا ہے، کیسے ایک ملک جو ایک خوفناک جنگ کے بعد بنا آج ایک نیوکلیر پاور بن چکا ہے، اور کیسے وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہوئے بھی بار بار اپنے ایکشنز سے دنیا کی اٹریکشن اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک تقسیم شدہ قوم کی، ایک خطرناک آئیڈیالوجی کی اور ایک ایسی فیملی کی جس نے 75 سال سے زیادہ عرصے سے ایک ملک کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل کہانی کم جونگ ان اور ان کی فیملی کی، جنہوں نے نارتھ کوریا کو بنایا۔ اگر ہم نے 2026 کے نارتھ کوریا کو سمجھنا ہے، ایک ایسا کنٹری جو ایک سائڈ پر انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ بنا رہا ہے اور دوسری سائڈ پر اپنے نیوکلیر پاور پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ہمیں جانا پڑے گا پاسٹ میں، صرف موجودہ لیڈرز تک ہی نہیں بلکہ کم جونگ ان کے فادر اور گرینڈ فادر کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا۔ جب کوریا کی ڈویژن نہیں ہوئی تھی، ایک یونائٹڈ کوریا ہوا کرتا تھا۔ اصل میں کم جونگ ان کی کہانی اس کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس دن سے شروع ہوتی ہے جب ایک یونائٹڈ کوریا ختم ہوا اور ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو آج تک ٹیکنیکلی طور پر ختم نہیں ہوئی۔ صدیوں تک کوریا ایک یونائٹڈ کنٹری تھا، اپنی زبان، اپنی کلچر اور اپنی سویلائزیشن کے لحاظ سے، لیکن 20 سنچری میں دنیا میں ایک خطرناک کنسپٹ آیا، یعنی کہ امپیریالزم کا، مطلب ہمارا کنٹری اچھا ہے اور جتنے بھی ہم سے کمزور کنٹری ہیں ان پر قبضہ جما لیا جائے، اور اسی کنسپٹ کو لے کر جاپنیز نے کورین کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، جو کہ 1910 سے لے کر 1945 تک رہا اور کورین لوگوں کے لیے ایک ظالمانہ دور تھا۔ جاپنیز نے کوشش کی کہ کورین آئیڈینٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، ان کی زبان، ان کا کلچر، حتیٰ کہ لوگوں کی پہچان تک، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران دنیا دو بڑی طاقتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف تھے الائیڈ پاورز جن میں فرانس، امریکہ، رشیا اور انگلینڈ تھے، اور جبکہ دوسری سائڈ پہ ایکسس پاور تھے جن میں جاپان، اٹلی اور جرمنی تھے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کنٹریز کی لسٹ نہیں تھی بلکہ ایک گلوبل پاور سٹرگل تھا، اور پھر آخرکار 1945 میں جب یو ایس نے جاپنیز کے اوپر ایٹم بم گرایا تو جاپان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی بری طرح سے ہاریں گے۔ جاپنیز کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور تقریباً 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے، اور یوں ورلڈ وار 2 اینڈ ہو گئی۔ کورین کو آزادی مل گئی، لیکن یہ آزادی ویسی نہیں تھی جیسی لوگوں نے خوابوں میں دیکھی تھی۔ اصل میں یہ ایک نئی مشکلات کی شروعات تھی۔ جب ایکسس پاور کو شکست ہوئی تو دنیا میں ایک نئی ٹینشن شروع ہوئی جسے ہم کہتے ہیں کولڈ وار۔ کولڈ وار کا مطلب ہے کہ ایسی جنگ جس میں ڈائریکٹ لڑائی تو نہیں ہوتی لیکن پریشر، پولیٹکس اور انفلوئنس کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پر کوریا بھی ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک سائڈ پر رشیا، سوویت یونین کا انفلوئنس تھا اور دوسری سائڈ پر امریکہ کا انفلوئنس۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین نے فیصلہ کیا کہ کوریا کو ٹیمپریرلی ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ انہوں نے میپ پر ایک رینڈم لائن کھینچی جسے کہا جاتا ہے 38 پیرلل، یعنی ایک امیجنری لائن جو کوریا کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ نارتھ حصہ سوویت یونین کے کنٹرول میں آیا اور ساؤتھ حصہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے۔ یہ سب ٹیمپریری ہو رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں ایک پرماننٹ جنگ شروع ہو گئی تھی، کولڈ وار، یعنی دو بڑی طاقتوں کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں جبکہ پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکلی طور پر۔ ایک سائڈ پہ تھے امریکہ یعنی کیپٹلزم سسٹم اور دوسری طرف تھے سوویت سسٹم یعنی کمیونزم، اور کوریا ان دونوں کے بیچ میں پھنس گیا۔ جو لائن ٹیمپریری تھی وہ آہستہ آہستہ ایک پرماننٹ بارڈر بن گئی، اور 1948 میں دو الگ الگ کنٹریز آفیشلی بن گئے۔ ساؤتھ میں ساؤتھ کوریا جس کا نام تھا ریپبلک آف کوریا، اور نارتھ میں نارتھ کوریا جس کا نام تھا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا۔ اور اس نارتھ کوریا میں ایک 36 سالہ شخص کو لیڈر بنایا گیا جس کا نام تھا کم il سنگ۔
वो एक गुरिल्ला फाइटर था जिसने जापान के अंदर भी एक लड़ाई लड़ी हुई थी, लेकिन असल ताकत इसके पीछे खड़ी थी सोवियत यूनियन। यही वो लम्हा था जहां से एक ऐसी डायनेस्टी शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। किम इल संग सिर्फ एक लीडर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिससे लोग मुतासर भी होते थे और इससे डरते भी थे। इसने कई साल सोवियत यूनियन में गुजारे और जब वापस आया तो इसके पास एक क्लियर विजन था, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो चीजें थी, एक कम्युनिज्म यानी सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, और दूसरा नेशनलिज्म यानी अपने कंट्री को सबसे ऊपर रखना। और जैसे ही इसे पावर मिली, इसने फौरन अपने रिवाइवल्स को खत्म कर दिया, यानी जो लोग इसके खिलाफ थे उनको मार दिया, और अपने इर्द गिर्द एक प्रोटोकॉल बनाया जिसको नाम दिया कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी लोगों को ये बात बताना कि लीडर कोई आम इंसान नहीं होता बल्कि ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं था बल्कि सन ऑफ नेशन बन गया, यानी कौम का बाप, एक ऐसा लीडर जिस पर सवाल उठाना नामुमकिन हो गया। यहीं से दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एक कम्युनिस्ट मोनार्ची, यानी नाम तो कम्युनिज्म का, लेकिन हुकूमत एक ही फैमिली में चलती रहे जैसे बादशाहत होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, कोरिया के दोनों पार्ट्स यानी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इस डिवीजन पर एग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि हम फिर से एक यूनाइटेड कोरिया बन जाएं, और वो इसी चीज को मानते थे कि हम एक यूनाइटेड कोरिया ही रहेंगे। इन दोनों कंट्रीज के लीडर के दिल में एक ही बात थी कि हम फिर से कोरिया को यूनाइटेड करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। और आखिरकार फिर वो दिन आ गया 25 जून 1950। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग ने अपनी मूव की और इसे जोसेफ स्टालिन ने सपोर्ट किया। नॉर्थ कोरिया की फौज टैंक्स के साथ 38 पैरेलल क्रॉस कर गई और साउथ कोरिया में दाखिल हो गई। ये अटैक इतना तेज और ताकतवर था कि साउथ कोरियन आर्मी तैयार ही नहीं थी इसका मुकाबला करने के लिए, और सिर्फ 3 दिन में साउथ कोरिया का कैपिटल सोइल गिर गया। किम इल संग ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा लग रहा था कि चंद ही हफ्तों में पूरा कोरिया कम्युनिस्ट बन जाएगा, यानी यूनाइटेड कोरिया हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक बार फिर एंट्री होती है यूएस और दुनिया की सुपर पावर्स की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस जंग की भरपूर मुखालफत की, और इन्होंने एक जंग नहीं बल्कि सोवियत अग्रेशन समझा। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने मिलिट्री रिस्पॉन्स की इजाजत दे दी। एक बड़ी फौज जिसे यूएन कोalition कहा जाता है, ये आर्मी साउथ कोरिया में आती है नॉर्थ कोरिया और सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, और इनके कैप्टन होते हैं डगलस मैक आर्थर। उन्होंने एक रिस्की लेकिन ब्रिलियंट मूव किया कि इंचोन पर समंदर के जरिए अटैक कर दिया। ये अटैक इतना बड़ा था कि इसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। नॉर्थ कोरिया की सप्लाई लाइंस कट गई और इनकी फौज पीछे हटने लगी। यूएन फोर्सेस ने पुश बैक किया और 38 पैरेलल को क्रॉस किया, और इतना आगे आ गए कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल पियोंगयांग पर कब्जा कर लिया और चीन के बॉर्डर तक पहुंच गए। अब ऐसा लग रहा था कि किम इल संग बिल्कुल हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक नया प्लेयर आता है मैदान में, माओ जेडोंग। चाइना के लीडर ने देखा कि अमेरिकी फौज इसकी बॉर्डर तक आ गई है और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इस चीज को लेकर 1950 में चाइना ने लाखों सोल्जर्स साउथ कोरिया में एंटर कर दिए, और चाइना के इस एक्शन से यूएन फोर्सेस को एक दचका लगा। अब ये जंग एक मुकम्मल तबाही का रुख इख्तियार कर गई थी। फ्रंट लाइंस बार बार चेंज हो रही थी और साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल पर बार बार कब्जा जमाया जा रहा था, कभी चाइना की तरफ से, कभी नॉर्थ कोरिया की तरफ से, कभी साउथ कोरिया की तरफ से, या फिर कभी यूएन फोर्सेस की तरफ से। हर तरफ तबाही थी, कत्ल हो रहे थे और लाखों लोग मारे जा रहे थे। शहर मिट्टी में मिल रहे थे और कोरियन आवाम ने नाकाबिले तसव्वुर तकलीफ बर्दाश्त की। ये लड़ाई 3 साल तक चलती रहती है, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए, और आखिर 3 साल बाद 27 जुलाई 1953 में एक एग्रीमेंट होता है सीज फायर के नाम से। ये एक पीस ट्रीटी नहीं थी बल्कि एक सीज फायर थी जिसने जंग को वक्ती तौर पे तो रोक दिया, लेकिन टेक्निकली ये जंग जारी रही। इस सीज फायर की मदद से एक बॉर्डर बना दिया गया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। इस लड़ाई ने नॉर्थ कोरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन किम इल संग ने इसे एक मौका जाना और इससे भरपूर फायदा उठा लिया। इसने अपनी कौम को कहा कि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ से स्टार्ट होता है ज्यूश, जिसका मतलब है सेल्फ रिलायंस।
यानी हर चीज खुद करना। लेकिन असल में ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये एक कोरियन आइडियोलॉजी बन गई। कोरियन आवाम ने इसको रिलीजन की तरफ फॉलो किया, जिसका मतलब था हम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं, जबकि वो अपने सुप्रीम लीडर की मुकम्मल अतात करेंगे। और इस टाइम नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग को ऐसे दिखाया जाता था जैसे वो मुकम्मल परफेक्ट हो, कभी गलती नहीं कर सकता और तकरीबन खुदा जैसा हो। तो अपने कंट्री के लोगों में अपना रोब पैदा करने के बाद किम इल संग ने स्टेप बाय स्टेप सोवियत और चाइनीज का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया। हर किस्म की जो मुखालफत थी उसको क्रश कर दिया और पूरे मुल्क को दुनिया से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया। इसने रूल बना दिया कि कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करी जाएगी। इसने एक ऐसी हुकूमत बनाई जहां जिंदगी के हर पहलू पर रियासत का कंट्रोल हो। आप क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, क्या सोचेंगे, आप क्या खाएंगे, कैसा लिबास पहनेंगे, कैसी जुबान बोलेंगे, हत्ता कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये सब कुछ स्टेट डिसाइड करती थी। और वो स्टेट के पीछे सिर्फ एक इंसान था, किम इल संग। और ये सारी चीजें करने के बाद किम इल संग को एक टाइटल दिया गया, इटर्नल प्रेसिडेंट, जिसका मतलब था कि वो मरने के बाद भी सदर रहेगा। इसने सिर्फ एक मुल्क नहीं बनाया था, उसने एक किंगडम बनाया था। और सबसे अहम बात ये कि ये किंगडम वो अपने मरने के बाद अपने बेटे को देने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात थी दोस्तों, कम्युनिस्ट सिस्टम में असूल ये होता है कि पावर पार्टी के जरिए आती है। मीन के पार्टी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो जीतेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। यानी हुकूमत पॉलिटिशियन से चलती है, ना कि फैमिली सिस्टम से। लेकिन नॉर्थ कोरिया हमेशा डिफरेंट रहा है। सालों पहले से किम इल संग अपने पहले बेटे को प्रिपेयर कर रहा था। इसे वर्कर्स पार्टी में बड़े बड़े ओहदे दिए गए और स्टेट प्रोपोगेंडा के जरिए इसे एक खास नाम दिया गया, डियर लीडर, यानी एक ऐसा लीडर जिसे आवाम मोहब्बत भी करें और बगैर सवाल किए इसकी बात भी माने। लोगों को ये बात समझा देगी कि वो अपने बाप के मिशन को आगे ले जाने वाला परफेक्ट इंसान है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन थी कि जब 1994 में किम इल संग की हार्ट अटैक से डेथ हुई तो पावर का ट्रांसफर बिल्कुल स्मूथ रहा। लोगों ने बगैर कोई सवाल करे उसके बेटे को अपना लीडर मान लिया और इसी लम्हे दुनिया की पहली कम्युनिस्ट डायनेस्टी बन गई, और जिसका लीडर था किम जोंग इल, एक पुरअसरार लीडर। वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसका बाप यानी किम इल संग एक पब्लिक फिगर था। वो लोगों के बीच में जाता, उनके साथ बातचीत करता था, उनको स्पीच देता था। लेकिन उसका बेटा ज्यादातर रिक्लूसिव था, यानी आवाम से दूर रहता था, रेयरली पब्लिक में नजर नहीं आता था। वो पब्लिक में बात ही नहीं करता था और ना ही किसी से मिलता था। लोग इसे इसकी अजीब चीज़ों से पहचानते थे, जैसे कि वो हील वाले जूते पहनता, अनयूजुअल हेयर स्टाइल होता और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल होता, जैसे महंगी गाड़ियाँ और ड्रिंक्स का शौक था उसे। लेकिन इस अजीब पर्सनैलिटी के पीछे एक बहुत ही क्लेवर माइंड छुपा हुआ था। उसने अपने बाप का बनाया हुआ सिस्टम मजीद स्ट्रॉन्ग किया, जिसका नाम था 10 प्रिंसिपल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मोनोलिथिक आइडियोलॉजिकल सिस्टम। यानी ये 10 लॉ उसकी फैमिली पर अप्लाई नहीं होंगे। पार्टी के सारे लोगों पर ये रूल अप्लाई होंगे, लेकिन किम फैमिली पर ये 10 रूल अप्लाई नहीं होंगे। और आवाम को बगैर कोई सवाल पूछे मुकम्मल लॉयल्टी दिखानी होगी। यानी अब नॉर्थ कोरिया में सब कुछ एक फैमिली के कंट्रोल में आ गया था। और जब किम जोंग इल ने पावर ली तो इसे बहुत बड़ा क्राइसिस भी मिला था। एक ऐसा मुल्क मिला था जो कोलैप्स के करीब था। इसकी बड़ी वजह थी 1991 में डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। यानी 1991 में सोवियत यूनियन टूट चुकी थी और वही सपोर्ट करते थे नॉर्थ कोरिया को। जब उनकी इकोनॉमी टूट गई तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी क्राइसिस आ गए। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सालों से डिपेंड थी सोवियत यूनियन पर। सोवियत यूनियन उनको सस्ता फ्यूल देते, फाइनेंशियली मदद देते और रिसोर्सेज भी देते थे। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूट गया, खत्म हुआ, तो ये सारा कुछ अचानक बंद हो गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि फ्यूल की कमी की वजह से नॉर्थ कोरिया के अंदर फैक्ट्रीज बंद होने लग गई, इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई और एग्रीकल्चर सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर नहीं थी और फ्यूल भी नहीं था। और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक दौर, फेब्रुवरी कहत, जिसको आर्डियस मार्च यानी मौत का दौर भी कहा जाता है। 1994 से 1998 तक का ये वक्त नॉर्थ कोरिया में एक खास नाम से जाना जाता है। यही वो वक्त था जब लोगों की जिंदगी एक नाइटमेयर बन गई।
यानी उनकी जिंदगी में खौफ के सिवा कुछ नहीं रहा था। हुकूमत का फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सालों से लोगों को राशन देता था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जो गवर्नमेंट लोगों को राशन दे रही थी वो भी उनको नहीं मिल रहा था, और इसका रिजल्ट ये निकला कि लाखों लोग भूख की वजह से मर गए। लाखों लोगों ने नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया। लोग जंगल की घास और दरख्त की छाल खा रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, पूरा मुआशरा सर्वाइवल मूड में था। लेकिन इसी क्राइसिस के दौरान एक नई चीज पैदा हुई, जैंग मेडेंग यानी गैर कानूनी मार्केट्स। ये गैर कानूनी इलीगल लोकल मार्केट्स थी जहां से लोग चीजें खरीदते, बेचते और एक्सचेंज करते। ये लोकल मार्केट से लोग बाहर की कंट्रीज से चीजें लाते और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर सेल करते। ये सेलर्स टेक्निकली तो इलीगल थे, लेकिन सर्वाइवल के लिए जरूरी बन गए। इस वजह से नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने भी इनको परमिशन दे दी। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी ना कहा गया। और फिर यूं आस्ता आस्ता नॉर्थ कोरिया में एक साइलेंट चेंज आने लगा। ये जो लोकल मार्केट्स थी ये बढ़ने लगी। लोकल सेलर्स थे, उन्होंने बाहर की कंट्रीज से चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोग पैसे पर डिपेंड होने लगे और क्लोज्ड नेटवर्क पर मोबाइल फ़ोन आ गए। सड़कों पर गाड़ियाँ आना शुरू हो गई और नई क्लास बनी जिसका नाम था डोंजू, मास्टर्स ऑफ मनी। यानी वो लोग जो अमीर थे वो बाहर की कंट्रीज से चीज़ें लाते और यहाँ पे लाके सेल करते, और अब लोग खुद पर और मार्केट पर ज्यादा डिपेंड होने लग गए थे। और ये सिस्टम में एक क्रैक था, एक दरार जिसे हुकूमत नहीं रोक सकती थी, सिर्फ मैनेज कर सकती थी। और दूसरी साइड जब लोग भूख से मर रहे थे तो किम जोंग इल की प्रायोरिटी कुछ और थी, अपने हुकूमत को बचाना, अपनी रजीम को टूटने ना देना। उसने एक पॉलिसी बनाई, सोंगन मिलिट्री ऑफ फर्स्ट पॉलिसी, यानी मुल्क में सबसे ज्यादा अहमियत फौज को दी जाएगी। उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ही नॉर्थ कोरिया को दुश्मनों से बचा सकती थी, और नॉर्थ कोरिया यूएस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। और इसी पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा था एक अल्टीमेट वेपन हासिल करना, यानी कि एटम बॉम्ब। क्योंकि किम जोंग इल जानता था अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो दुनिया इसे इग्नोर नहीं कर सकेगी। और यहाँ से कहानी और भी इंटेंस होने वाली है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नई चीज नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में और इसमें मदद दी थी सोवियत यूनियन ने। ऑफिशियली ये एक पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम था, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी। लेकिन हकीकत में एक हिडन गोल हमेशा से मौजूद था, यानी एटॉमिक वेपन बनाना। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका का खौफ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट पहले ही एक न्यूक्लियर पावर थी और नॉर्थ कोरिया को पता था कि अगर हमने यूनाइटेड स्टेट का मुकाबला करना है तो हमारे पास भी एटम बॉम्ब का होना जरूरी है। 1980 से 1990 के दौरान ये प्रोग्राम आस्ता आस्ता आगे बढ़ता रहा, ज्यादातर सीक्रेटली। और फिर 1994 में सूरत-ए-हाल अचानक सीरियस हो गई। नॉर्थ कोरिया ने डिसीजन किया कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकल जाएगा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन को फैलने से रोकना है। और इसके बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान टेंशन बढ़ गई, खास तौर पर उस टाइम के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के साथ। और आखिरकार यूएस और नॉर्थ कोरिया की एक डील हुई जिसका नाम था एग्रीड फ्रेमवर्क। इस डील के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अपना प्लूटोनियम प्रोग्राम फ्रीज करेगा, यानी बॉम्ब बनाने वाला प्रोसेस रोक देगा, और बदले में इसे एड यानी मदद दी जाएगी। जैसे कि यूएस गवर्नमेंट का तरीकाकार है कि जो कंट्री भी एटम बॉम्ब बनाना चाहता है उसको मदद का, पैसों का लालच देकर उसका एटम बॉम्ब तबाह कर दिया जाता है। तो सेम इसी तरह नॉर्थ कोरिया के साथ भी एग्रीमेंट किया गया कि उनको पैसे मिले करेंगे, बदले में वो अपना एटम बॉम्ब का प्रोजेक्ट छोड़ दें। लेकिन ये डील ज्यादा देर चल ना सकी, क्योंकि अमेरिका को शक था कि नॉर्थ कोरिया सीक्रेटली यूरेनियम के जरिए दूसरा बॉम्ब प्रोग्राम चला रहा है। यानी एक प्रोग्राम उन्होंने स्टॉप कर दिया है लेकिन दूसरा अल्टरनेट प्रोग्राम चला रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का कहना था कि जो प्रॉमिस किया गया था पैसे देने का, एड देने का, वो उन्हें वक्त पर नहीं मिली। इस वजह से उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ दिया और इससे ऑफिशियली एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया। और किम जोंग इल के दौर में यह प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा, फुल स्पीड पर। और फिर आया एक तारीखी लम्हा, अक्टूबर 2006। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये ब्लास्ट तो छोटा था लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा था, अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, नाउ वी आर न्यूक्लियर पावर्स। 2009 में एक और टेस्ट किया गया, दुनिया ने सख्त रिएक्शन दिया, सैंक्शंस, पाबंदियां लगा दी गईं, यानी ट्रेड
मनी और रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इससे नॉर्थ कोरिया को रोकना मुमकिन ना हुआ। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे, और जब कोई रास्ता ना बचा तो नॉर्थ कोरिया के साथ एग्रीमेंट करने की बारी आ गई। यानी दुनिया ने बातचीत के जरिए मसले को हल करने की भी कोशिश की। सबसे मशहूर मुज़ाकरात थे 6 पार्टी टॉक्स, जिनमें शामिल थे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, जापान। लेकिन सालों की डिस्कशन के बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं निकला और साल 2009 में ये टॉक्स भी खत्म हो गई। किम जोंग इल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये इसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। इसका मकसद वाज़िह था, दुनिया इसे इग्नोर ना कर सके, कोई भी इसे हटाने की हिम्मत ना कर सके। यानी न्यूक्लियर वेपन का मतलब है अल्टीमेट प्रोटेक्शन। और अब सब कुछ, ये पावर, ये सिस्टम, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसे नए शख्स को मिलने वाला था, इसका सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी टीनेज लाइफ मगरब वेस्ट में गुजारी, लेकिन इसके बारे में दुनिया को कुछ भी मालूम ना था। और यहाँ से कहानी एक नए फेज में दाखिल होती है, जहाँ पर एक यंग और अनप्रिडिक्टेबल लीडर दुनिया को हैरान करने वाला है। और आखिरकार दिसंबर 2011 नॉर्थ कोरिया की टीवी पर एक न्यूज एंकर आंखों में आंसू के साथ ऐलान करती है, डियर लीडर किम जोंग इल अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया रुक सी गई। पूरे नॉर्थ कोरिया में गम का समा चल रहा था। लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए और मुकम्मल तौर पर हड़ताल शुरू कर दी। और अब सवाल ये था कि अगला लीडर कौन। जो नाम सामने आया वो सबके लिए शॉकिंग था, सिर्फ 27 ईयर का नौजवान। अब यहाँ पर एक अहम बात है, यही वो हिस्सा है जो दुनिया को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था। किम जोंग उन ने अपनी टीन एज लाइफ यूरोप, स्विट्जरलैंड में गुजारी थी, लेकिन कैसे? वो अपने असल नाम से नहीं, बल्कि एक फेक आइडेंटिटी के साथ वहाँ पढ़ता था। यानी किसी को भी नहीं पता था कि वो नॉर्थ कोरिया के फ्यूचर लीडर हैं और किम जोंग इल के बेटे हैं। वो आम स्टूडेंट की तरह ही स्कूल जाता था, बास्केटबॉल खेलता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकी चैन और NBA का फैन था। सोचें, एक तरफ एक आम स्टूडेंट की लाइफ और दूसरी तरफ एक फ्यूचर का लीडर, और अब वो एक न्यूक्लियर स्टेट का लीडर बनने वाला था। तो जब किम जोंग उन लीडर बना तो लोगों ने गलत प्रिडिक्शन लगाई। दुनिया, खास तौर पर वेस्टर्न एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, असल पावर ओल्ड जनरल्स के पास रहेगी, यानी मिलिट्री के पास रहेगी, शायद सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ गलत साबित हुआ। किम जोंग उन ने आते ही बहुत तेजी से अपने स्टेप्स लिए। सिर्फ एक साल में, यानी 2012 तक पार्टी, स्टेट और मिलिट्री के तमाम ओहदे अपने पास ले लिए। यानी वो अपनी पार्टी का भी सबसे बड़ा लीडर था, अपनी मिलिट्री का भी सबसे बड़ा ओहदा उनके पास था, अपनी स्टेट का भी प्रेसिडेंट था। लेकिन एक मसला था, इसके इर्द गिर्द वही ओल्ड पावरफुल लोग थे जो इसके बाप के दौर से आए थे और शायद उसे एक पोपट लीडर समझते थे। यानी दिल ही दिल में किम जोंग उन की इज्जत नहीं करते थे। तो इस चीज से बचने के लिए किम जोंग उन ने एक क्लियर स्ट्रेटजी अपनाई, जो भी खतरा बन सकता है उसे खत्म कर दो। और सबसे शॉकिंग बात यह कि उसने अपने चचा को ही एलिमिनेट करवा दिया, जिनका नाम था जैंग सोंग दैक। वो मुल्क का सबसे दूसरा बड़ा ताकतवर इंसान समझा जाता था और किम जोंग उन का मेंटोर भी। स्टेट मीडिया ने इस पर कई इल्जामात लगाए और इसे पब्लिकली हटा दिया गया। ये एक मैसेज था, यहाँ कोई सेफ नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट लॉयल्टी ही सर्वाइवल है। यही 2007 में मैसेज दोबारा दिया गया जब इसके सुतीले भाई किम जोंग नाम को मलेशिया के एयरपोर्ट में कत्ल करवा दिया गया। इसकी VX नर्व एजेंट इस्तेमाल हुआ। ये एक इंतहाई खतरनाक केमिकल वेपन है और दुनिया भर ने इसका इल्जाम प्योंगयांग पर डाला। अब जब इसने पावर सिक्योर कर ली, अपने जितने भी खिलाफ लोग थे उन सबको मरवा दिया, तो इसने अपनी इमेज को बदलना शुरू किया। इसने अपने बाप की तरह हिडन रहने के बजाय अपने दादा की तरह बनना पसंद किया, यानी लोगों में जाना शुरू कर दिया, स्पीच देना शुरू कर दी और पब्लिकली फिगर बना। अब वो कॉन्फिडेंट था अपने दादा किम इल संग की तरह पब्लिक से मिलने वाला और लोगों में आने जाने वाला। अक्सर वो अपनी वाइफ के साथ नजर आता है, री सोल जू, जो एक फॉर्मर सिंगर थी और मॉडर्न लुक रखती थी। वो फैक्ट्रीज में जाता है, लोगों से मिलता है, बच्चों को गले लगाता है। ये सब एक केयरफुली डिजाइंड इमेज है एक मॉडर्न फ्रेंडली लीडर की। लेकिन ये रियलिटी नहीं है।
ये सिर्फ तस्वीर की एक साइड दिखाती है, दूसरी साइड इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, वहां पर नई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाता है, मॉडर्न प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन बाकी मुल्क में लोग अब भी मुश्किलात का शिकार हैं। लोग आज भी सरवाइव करते हैं मार्केट्स के जरिए और लोकल बिजनेस के जरिए, लेकिन ये लाइफ स्टेबल नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, इंटरनेशनल पाबंदियां हैं और करप्शन बहुत ज्यादा है जो कि गवर्नमेंट खुद ही करती है। ये सब लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं और आज के दिन 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग जॉब्स के लिए रिश्वत देते हैं गवर्नमेंट को। सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है, अवाम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ओवरऑल फोकस अब भी वेपन्स के ऊपर है, अपनी पब्लिक और लोगों के ऊपर नहीं है। लोगों को मोबाइल फोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लोगों का हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लोगों का काम करने का टाइम, काम पे जाने का टाइम और कहाँ पे काम किया जा सकता है, ये भी सारा कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक स्ट्रेंज हालत में है। ट्रांजैक्शंस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन नए सपोर्ट सिस्टम भी बन गए हैं। मसलन रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, चाइना के साथ ट्रेड अभी भी जारी है और ये लोग क्रिप्टो क्राइम से भी तकरीबन $2 बिलियन कमा लेते हैं, जिसमें क्रिप्टो थेफ्ट या फिर हैकिंग करी जाती है। ये सब रिसोर्सेज किम जोंग उन को एक चीज देते हैं, कंट्रोल। वो इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर सकता है और मिलिट्री एम्बिशंस को भी फंड कर सकता है। असल सवाल अब भी बाकी है, क्या ये डायनेस्टी हमेशा चलेगी? क्या ये बादशाहत हमेशा कायम रहेगी या सिस्टम में मौजूद क्रैक्स एक दिन कुछ ना कुछ बदल देंगे? और यही एम्बिशंस यानी ताकत और कंट्रोल बढ़ाने की ख्वाहिश असल में किम जोंग उन की पूरी हुक्मरानी को डिफाइन करती है। किम जोंग उन के दौर में नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ा है। इसने अपने दौर में मजीद 4 न्यूक्लियर टेस्ट करवाए। एक ऐसा टेस्ट भी जिसे नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब कहा, ये आम एटॉमिक बॉम्ब से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और अब बात सिर्फ बॉम्ब बनाने की नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसे मिसाइल भी बना लिए हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे खतरनाक मिसाइल भी बना लिए हैं, जैसे ICBM, इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक मिसाइल जो हजारों किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं, हत्ता के US तक भी। सॉलिड फ्यूल मिसाइल, ये खास किस्म के मिसाइल होते हैं जो बहुत जल्द लॉन्च हो सकते हैं और दुश्मन के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। मार्च 2026 में नॉर्थ कोरिया ने एक नया टेस्ट अनाउंस किया है, हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन। सादा अल्फाज में ये फ्यूचर मिसाइल्स को और ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बनाएगा। हत्ता कि एक मिसाइल में मल्टीपल वार हेड्स भी हो सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल कई टारगेट्स पर फेंका जा सकता है। और इनका मकसद सिर्फ क्लियर है कि ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम बनाना जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि रियल अनस्टॉपेबल थ्रेट हो। 2026 तक नॉर्थ कोरिया ने एक नई डायरेक्शन ले ली, अमेरिका से डिस्टेंस, रशिया और चाइना के साथ करीब ताल्लुकात, ताकि सैंक्शंस यानी पाबंदियां खत्म करी जा सकें। सादा अल्फाज में बड़े मुमालिक इसे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वेस्ट के खिलाफ एक प्रेशर टूल के तौर पर देखते हैं। साल 2022 के बाद दुनिया के सामने एक नया नाम आया, किम जो आई, किम जोंग उन की बेटी। इसकी उम्र तकरीबन 13 साल समझी जाती है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि वो अब अक्सर अपने वालिद के साथ नजर आती है। मिलिट्री परेड्स में, मिसाइल लॉन्च में या फैक्ट्री विजिट में हर जगह ये मौजूद होती हैं। लेकिन ये सिर्फ फादर डॉटर मूवमेंट्स नहीं है, ये एक सिग्नल है। नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया ने इसे टाइटल्स दिए हैं जो पहले सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए इस्तेमाल होते थे। एक जगह तो इसे और इसके वालिद को कहा गया ग्रेट पर्सन्स ऑफ गाइडेंस। ये फ्रेज साफ बताता है कि इसे फ्यूचर लीडर के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या वो अगली लीडर होंगी? साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक इसे अगली लीडर के तौर पर प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। किम डायनेस्टी की पहली फीमेल रूलर। किम फैमिली के लिए पावर सिर्फ हुकूमत नहीं, ये एक लेगेसी, एक सिस्टम और एक मिशन है। और इस मिशन का एक ही असूल है, ब्लड लाइन मस्ट कंटिन्यू। तो अब सवाल यह है कि क्या ये डायनेस्टी हमेशा चलती रहेगी या एक दिन सिस्टम अंदर से टूट जाएगा? अगर आपको ये डीप स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।